Forest Service Officer and has served as the Principal Chief Conservator of Forest, Madhya Pradesh. He is currently the chairman of the State Expert Appraisal Committee, Madhya Pradesh. During his long career, Sir has served extensively in the areas of forest management, biodiversity, and wildlife conservation. One of his major contributions was during the Simhastha Mahakumbh at Ujjain in 2016, where he led the greening and Shipra river cleaning initiatives, for which he received an award from the Chief Minister as well. Sir has also contributed to the conservation of rare and endangered plants and wildlife. Along with his field experience, he has authored 9 books and around 40 research papers on the flora and biodiversity of Madhya Pradesh. Considering the theme of our committee, I am sure Sir's experience and insights will help our students understand the subject from a much more practical perspective. So, we are truly grateful to have you with us today. With that, I would request you to kindly take the session forward. Over to you, sir. ओके, थैंक यू अंशुमान जी और डॉक्टर त्रिपाठी जी और सभी स्टूडेंट्स। अंशुमान जी ने जो टॉपिक दिया है, नमस्कार अंशुमान जी, वो टॉपिक अपने आप में बड़ा लाइव है और दिस इज द रियल वे फॉर टू कंजर्व द फॉरेस्ट। अभी आपने एक ट्रेडिशनल मेथड्स देखा होगा फॉरेस्ट का। आर यू कन्वीनियंट विद द हिंदी और इंग्लिश बोथ? Sir, please, if you could keep it bilingual, sir, both in Hindi and English. Okay. So I break my presentation in 3 parts. As you are the students, I think it is very better to give the perspective about the forest extension of the forest area in the Madhya Pradesh and the utility of a tree for a person. Forest area of the Madhya Pradesh is roughly around 25%, you must be knowing. And about the country, it is 25.1%. Density wise, in the Madhya Pradesh, very dense forest is roughly around 2.28%. Moderately dense is 10.87, and open forest is 11.85%. If you add on, it is roughly around 25%. आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि what does mean by the very dense forest, moderately dense, and the open forest? So anyone is knowing the definition of the very dense, moderately dense, and open forest? The very dense forest is the forest having more than 70% of the forest cover density. Moderately is 40 to 70, and open forest less than 10%. This is the standard definition of the forest density classes. And 1% is roughly around the scrub forest. The total forest cover as such of the reserve forest, legally notified forest, is 24.85%. Other part which contribute to the 25% is roughly around 3%. That is the forest cover. And that forest cover is called the tree cover. Tree cover includes tree outside forest and the individual trees. So there are two different aspects of the forest cover. First part is the reserve and the protected forest, which is legally notified forest. And second part is the forest cover outside the forest area, that is called the TOF, tree outside forest. There are standard methods by the Forest Survey of India. They biannually, they are through the satellite imagery, they assess, and ground truthing is also carried out. And tree outside forest is roughly around 3%. Second part is the what the forest policy of the country says about the forest cover area, not the forest area. Be very specific. Forest cover, it should be 33% of the area, 33%. So Madhya Pradesh is lagging behind by the 8%. So first question, that
comes in your mind. If the total area of the reserve forest and the protected means the legally notified area, if we afforest them adequately, even then we cannot reach up to 33%. Answer lies where? Outside forest area means the private areas, urban areas, किसान के खेतों में, schools में, gardens में, roadside, canal side plantation. These are all the outside the forest area. The first very basic question is, if we have to achieve the national forest policy of the 33% forest area, we have to afforest outside the forest area. Major mission of all the institutions, including the government, including the forest, there is a scope for the outside forest area. Only then we can get a targeted achievement of the forest area. Second part, I will come very soon about the topic, but as you are the students, I thought it's better to give some importance and the general perspective about the forest. In Madhya Pradesh, out of total species roughly around 2300, trees are 27%, herbs 24% roughly, shrubs 23%, climbers are 9% by their habit. And third part, Students अगर which is आपको doubt important, regarding the format of the program, how much oxygen a person of average age require per day? किसी कुछ पूछना What is your environmental burden, your footprint over the nature, over the environment, where you live in? For a person, roughly around per day, you need PPT की बात कर रहे हैं आप 0.75 kg of oxygen per day. ओपनिंग स्पीच ऑफ व्हाट PPT Assuming प्रेजेंटेशन का the different age classes, देखिए आपके पास roughly 0.5 to 0.75 8 से 10 kg per day. Your requirement is 750 grams कि भाई per day PPT of ज़्यादा oxygen. जरूरी है, कोई स्लाइड ज्यादा जरूरी है, उसको आज समझ And one tree contributes how much ओपनिंग oxygen? 1.5 kg oxygen per day. Average trees, average mature trees contribute 1.5 kg. और इनोवेटिव कर सकते हैं ओपनिंग Second question for the students is how much CO2 carbon dioxide absorbed by a tree per day or per year. Per day 0.05 kg per day. Annually 20 kg. Average roughly 70 to 80 centimeter collar girth का कोई tree है mature, तो 20 kg per year of 0.05 kg per day. No doubts. Then So how many of second you prepare question, your PPTs? how much a person gives out carbon dioxide per day? 1 जितने kg. जल्दी PPTs प्रिपेयर करेंगे 1 आपका kg. समय अच्छा रहेगा कि हम GD की तैयारी कर पाए। Or for a person PPT को प्रिपेयर करके फाइनलाइज करा के अपने coordinators से in उसको with रखें। respect to the our country India or with respect to the Madhya Pradesh, 2 ton per year we have a footprint value. Darshana, you are on. Means 2000 kg of the burden we put over our atmosphere or climate or the environment. This is for the average person who are living very luxury life. They contribute 4 ton, 4000 kg per year. So this is our environment responsibility. तो शहर के लोग हैं वो तो बेसिकली फॉरेस्ट या ग्रीन कवर की किस चीज की डिपेंडेंसी है? इन्वायरमेंटल वैल्यूज, क्लाइमेट वैल्यूज उसका ज्यादा है और रफली 500 लीटर टू 1000 लीटर मोर देन दैट a tree transpires per day the water in the form of water vapor, जिसके कारण से आपकी हवा में नमी लगातार बनी रहती है। तो एक जो शहर के लोग हैं उनके लिए जंगल का, फॉरेस्ट का या एनवायरनमेंट का एक अलग पर्सपेक्टिव है। जो जंगल के पास रहने वाले वनवासी हैं या आदिवासी हैं
उनके संदर्भों में एक अलग प्रकार से उनका एक डिपेंडेंसी उसके ऊपर है। Okay then. तो हमने इस चीज को इसलिए हाईलाइट किया कि आप शहर में रहते हैं, आपका एक जिम्मेदारी क्या है पर्यावरण के प्रति। यदि कोई एक कॉमन व्यक्ति आपसे पूछे तो आप बता सके, और खुद की अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सही सही यदि हम देखें तो एक व्यक्ति को 10 पौधों को बड़ा करना चाहिए, लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, वो सफल हो जाए, बड़े हो जाए वो, तब आप इस प्रकृति की, इस पृथ्वी देवी की, या जहां पर आप रहते हैं, तब आप अपने ऋण को अदा कर सकते हैं। अन्यथा आप ऋण के साथ ही रहेंगे पूरे जीवन। अब शहर में बहुत लोगों के पास जमीन नहीं है कि हम पेड़ लगा पाए। ऐसी स्थिति में हम कम से कम पेड़ को बचाने के लिए आगे आए। हम, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है हमारा। पेड़ों को कटने से हम बचाए। बहुत से तरीके हो सकते हैं पेड़ों को बचाने के लिए। अब जो थर्ड पार्ट हमारा आता है, जो आज का टॉपिक है बेसिकली, तो उस टॉपिक के रेलिवेंस में हम जाएं तो बहुत से कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस के हुए कि हम फॉरेस्ट कवर को या हम वन को कैसे बचाएं, हाउ टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। तो यूनाइटेड नेशन में 1972 में 5 जून को सबसे पहले कॉन्फ्रेंस हुआ था, रियो कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसको। और उसके बाद ही कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में रफली अराउंड मोर देन 170 कंट्रीज ने उस कन्वेंशन का भागीदार रहा। भारत भी उसका सिग्नेटरी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और हर स्टूडेंट्स को इसका ज्ञान होना चाहिए कि व्हाट इज दिस कन्वेंशन। इस कन्वेंशन के बाद फिर बहुत से प्रोटोकॉल आए, कार्टेगेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, एचई टारगेट 2000 में आया। पर सब कुछ करने के बाद फिर ये फील हुआ वर्ल्ड ओवर कि वट एवर द वेज वी आर कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट इज नॉट द रियल वे। हम कैसे वन को बचाएं, कैसे संरक्षित करें और कैसे उसको समृद्ध करें, ये प्रश्न आया। 2007 में यूनाइटेड नेशन ने एक 46 पॉइंट का डिक्लेरेशन दिया। जब तक हम वन के पास रहने वाले वनवासियों को, जनजातियों को हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में नहीं जोड़ेंगे, तब तक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कभी संभव नहीं हो सकता। इसके ऊपर बहुत से प्रोटोकॉल बने और लास्टली कुमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना ये 2022 में। इसको आप लोग नेट पे पढ़िएगा, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शंस हैं। देयर आर 4 गोल्स एंड 23 टारगेट्स, जिसमें कि हमको 2030 तक अचीव करने हैं बहुत से टारगेट्स। और 2050 में तक जो हमारा लक्ष्य है, इसमें टू लिव विद नेचर, नेचर के साथ रहना हम कैसे सीखें, ये अल्टीमेट हमारा विजन है 2050 का। और ये जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ही फाइनल एक फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया कि हाउ टू कंसेप्चुअलाइज, हाउ टू मॉनिटर ऑल दिस एक्टिविटी। तो वर्ल्ड ओवर बहुत इसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस है। और अभी कॉप 16 हुआ था, नाउ कॉप 2027 होने वाला है आर्मेनिया में। तो वर्ल्ड ओवर बहुत से प्रिस्क्रिप्शंस आए, बहुत से गाइडलाइंस आए, बहुत से थॉट प्रोसेस आए, और 100 कंट्रीज ने अपने अपने कमिटमेंट्स दिए यूनाइटेड नेशंस को, हम ये काम करेंगे। जैसे भारत ने भी कमिटमेंट दिया कि 2030 तक हम 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम सिक्वेस्टर करेंगे, और 50% ऑफ डिग्रेड फॉरेस्ट को हम फिर से वापस लाएंगे। हम टारगेट्स बहुत बड़े बड़े हैं, परंतु ओवर द इयर्स, मैंने भी लगभग 40 इयर्स तक डिपार्टमेंट में काम किया, और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का जो एक रेगुलेटरी मेथड है, एक जो लीगल प्रोसीजर्स हैं, बाद में वन समितियां भी बनाई गई, परंतु यदि हम देखें तो वन अपने आप में उस स्थिति में नहीं है,
और आफ्टर एवरी 10 ईयर जब हम फॉरेस्ट को रिव्यू करते हैं, हर जिले का वर्किंग प्लान बनता है और रिव्यू होता है, तो हम फर्दर डिटोरिएशन ही पाते हैं, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में हो और चाहे फॉरेस्ट कैनोपी कवर के रूप में क्यों ना हो, और चाहे वाइल्ड लाइफ की पूरी जो सिस्टम है, इकोलॉजी है, उसके ऊपर भी। तो यही प्रश्न आता है बार बार कि ऐसा क्या रास्ता है। तो इस रास्ते के लिए मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया फिर मध्य प्रदेश में, लगभग 4.5 years हो गए हैं। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख 9 जनजातियां हैं, भील, भिलाला, गोंड, बैगा, कोरकू, सबके ऊपर मैंने काम किया और लगभग 4.5 साल तक फील्ड में मैंने इनके साथ बहुत रिगरस संपर्क किया। फॉरेस्ट में गए, इनके रीति रिवाज, इनकी परंपराओं को समझने का प्रयास किया कि एक आदिवासी जंगल को कैसे देखता है, और जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में बैठ के देखते हैं तो हम फॉरेस्ट को कैसे देखते हैं, या कोई पॉलिटिकल सिस्टम में फॉरेस्ट को कैसे देखता है, या शहर का व्यक्ति कैसे देखता है। जो हमारा प्रोसीजर है, हम फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते हैं। ऐसा सोचते हैं कि फॉरेस्ट डिमांड द कंजर्वेशन और हम कंजर्वेशन कर लेंगे बाय डिफरेंट लीगल प्रोसीजर्स, बाय पेट्रोलिंग, या बहुत से मेथड्स हैं, या प्लांटेशंस करके। परंतु यदि आपको भी कभी वन क्षेत्र में जाने का मौका मिला हो आज से 10 साल पहले, और उसी क्षेत्र में आप रिविजिट करिए, तो फॉरेस्ट को उस रूप में आप नहीं पाएंगे। ऐसा क्या कारण हो गया कि पूरा सिस्टम इतना बड़ा, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, और हमारी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटीज भी बनी है, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज भी बनी है, इतना होने के बाद भी हम वन को उस रूप में क्यों नहीं ला सकते कि जो अपनी इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम फंक्शन को ठीक से कर पाए, वहां वन्य प्राणी ठीक से रह सके और लोगों की जीविकापार्जन भी हो सके। तो इस विषय के ऊपर जब मैंने अध्ययन किया, हमने इंटायरली चेंज सिनेरियो को देखा कि जैसा हम फॉरेस्ट को रेगुलेट करते हैं और कंजर्व करना चाहते हैं, वी आर इन्फोर्सिंग द कंजर्वेशन, we are enforcing by different means, but in the tribals life or the people who are living around the forest area, their mechanism of conservation is built in their culture. This is by default conservation. उनको कंजर्वेशन करने की जरूरत नहीं है कि हम जंगल में जाके इसको, पेड़ को ना काटें, इसको बचाएं, हम पेट्रोलिंग करें। by their cultural relations, they are so interwoven with the nature, with the forest. I will give some examples, फिर आप उसको विचार करिएगा कि एक वनवासी जंगल से कैसे जुड़ा हुआ है। मैंने जो देखा, कुछ एग्जाम्पल बताता हूं जिससे आपको लगेगा फॉरेस्ट एंड द ट्राइबल्स आर, दे आर सेम, दे आर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, और उनको आइसोलेशन में आप नहीं देख सकते। उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आइसोलेशन में नहीं है। यहां से हम चित्र शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट एग्जांपल। आपने कभी ट्राइबल एरिया में पंडोरा भित्ति चित्र देखा हो, जो ये ड्राइंग्स बनाते हैं अपने घर के बाहर किसी भी त्योहार पर या शादी विवाह पर, एक बड़े कैनवस के ऊपर पूरी चित्रकला बनाते हैं, पिठौरा आर्ट बोलते हैं। और इसके ट्रेंड लोग ही होते हैं इनके समाज में, वही इस काम को कर पाते हैं। पर घर की ही लोग, घर की महिलाएं, बच्चे, वो उनके साथ काम करते हैं, और दैट पर्सन वो केवल डायरेक्ट करता है क्या क्या बनाना है। जब घर में शादी होती है, ये पिठौरा आर्ट बनाते हैं। उसमें वो व्यक्ति जो जानकार है, वो पूरा नरेट करता है स्टोरी को, इंटायर स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट, कि पक्षी कहाँ पर है, जीव जंतु कहाँ है, वनस्पति कहाँ पर है, सबको चित्रकला में दिखाता है। और मेल और फीमेल को, पुरुष और स्त्री को बीच में बहुत छोटे से चित्र के रूप में वो दर्शाते हैं। यदि ऑफलाइन कभी अंशुमान जी बुलाएंगे तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के रूप में भी दिखाऊंगा।
आपको कितना सुंदर लगेगा कि एक बड़ी सी तस्वीर, एक बड़ी सी दीवार के ऊपर स्त्री और पुरुष छोटे से हैं, एक बिंदु के रूप में है, और उसके चारों तरफ पूरा वन और वन से जुड़ी हुई सब चीजें, नदी नाले, पशु पक्षी, सब कुछ वहां दिखेगा। क्या दिखता है आपको इससे? हम मनुष्य उसको एक नियंत्रण करता नहीं है, उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द नेचर। इसलिए उसको बीच में छोटा सा रूप दिखाया है कि तुम भी इस इकोसिस्टम के पार्ट हो। सच अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ लिविंग विद द नेचर। और वो कैसे इनबिल्ट है? उनके शादी विवाह में एक इंपॉर्टेंट रिचुअल के रूप में वो आ गया, और ये जनरेशन टू जनरेशन ओरली ट्रांसफर होता है कहानियों के रूप में, और लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या और भी जो लोग हैं, इवन स्टूडेंट्स, हमारे लिए वृक्ष हमारे लिए एक नाउन है, एक नाम है। उसको हम एक नाम दे देते हैं वृक्षों को, चाहे हिंदी नाम बोले चाहे बॉटनिकल नेम बोले। परंतु वृक्ष किसी आदिवासी के लिए क्या है, ये आपको जान के आश्चर्य लगेगा। उसके लिए क्रिया है, ये वर्ब है। किस प्रकार से? जैसे हम लोगों के गोत्र होते हैं सबके, हमारे ख्याल से आप लोग जानते होंगे गोत्र सिस्टम को, सबके गोत्र होते हैं अलग अलग। भील के 35 गोत्र होते हैं, भीलों के, उनके अपने ट्रेडिशंस हैं। हर गोत्र का एक वृक्ष है जिससे वो अपने आप को पहचान करवाते हैं। यदि ये टीक है, सागौन है, तो कौन होगा इसका? टेकाराम गोत्र होगा। सेमलिया किसी का गोत्र है तो सेमल का वृक्ष होगा। बिजौलिया किसी का गोत्र है तो बीजा का वृक्ष उसका होगा सिंबल। 35 गोत्र है और 35 उनके वृक्ष हैं। आप सोचिए कि कैसे उनसे इनबिल्ट है वो वृक्ष। और वो गोत्र सिस्टम में नियम है, उसको कभी वो काटेंगे नहीं, कभी नष्ट नहीं करेंगे। यदि दूसरा व्यक्ति भी उसको कुछ नुकसान करना चाहेगा तो उसको वो रोकते हैं वो। इसी प्रकार से एक न एक पक्षी या वन्य प्राणी भी उनके इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे बैगाओं के साथ टाइगर जुड़ा हुआ है, वो अपना गौरव सोचते हैं इसको। टाइगर हमारी गौरव है, जबकि शहर में टाइगर आए तो एक लाइफ को थ्रेट है, परंतु बैगा के लिए लाइफ का थ्रेट नहीं है वो। इसी प्रकार से कोरकू है, गोड़ है, भील है, भिलाला है, सबका एक गोत्र सिस्टम है और हर गोत्रों के साथ वृक्ष जुड़े हुए हैं। शहर के लिए, इवन वन विभाग के लिए, यदि हम जैव विविधता की परिभाषा करें तो हम बोल देंगे भांति भांति के वृक्ष, उनमें आपस में जो संबंध है एक जैव विविधता है। परंतु आदिवासी के जीवन में जैव विविधता क्या है? उनका वो प्रतीक है, उनका वो पहचान है वो। इसी प्रकार से डेटी सिस्टम, जो देवता मानते हैं वो, हर गांव के और हर घर के अंदर भी एक देवता रहते हैं। गांव के विलेज डेटी होते हैं, गांव के बाउंड्री के चारों कोने पर अलग डेटी होते हैं, जंगल में अलग होते हैं डेटी, जंगल में मंदिर अलग होते हैं। तो जंगल को कैसे जोड़ा उन्होंने? देवी देवताओं के साथ उसको जोड़ दिया। जैसे सैक्रेड ग्रुव होता है पवित्र स्थल जंगल में, पहाड़ियों के ऊपर, वहां कोई मंदिर नहीं होता कि पक्के मंदिर बना दिए, एक स्थान है पूजा का, और सब गांव के लोग वहां पर जाएंगे और वहां अपना रिचुअल्स करेंगे और उस एरिया में पेड़ कभी नहीं काटेंगे। आप जितने भी सैक्रेड ग्रुप देखेंगे जंगलों में, सब ये हाई स्लोप्स के ऊपर है। और जब हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए वर्किंग प्लान बनाते हैं तो हाई स्लोप के वृक्षों को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शंस रहता है 25 डिग्री के ऊपर। कोई भी फॉरेस्ट एरिया हो तो देयर इज नो फेलिंग जोन। उनके लिए नो फेलिंग जोन क्या था? एक सिंबल दे दिया कि यहाँ देवी देवता रहते हैं, उसको हम कभी नहीं काटेंगे। जैसे आप किसी चीज को एक आध्यात्मिकता से, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, उसको हम बचाने लगते हैं, अपने दिल से उसको बचाने का प्रयास करते हैं। और हमने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया 25 डिग्री
एक मैकेनिकल फिगर दे दिया, इसके ऊपर कोई स्लोप है तो नो फीलिंग जोन है। पर 25 डिग्री ज्यादा देने से कोई हमारा इमोशनल अटैचमेंट नहीं हुआ, परंतु जनजाति के लिए वो एरिया एक पूजा और पवित्र स्थल है जहां किसी को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है उनके साथ। तीसरा है उनके फेस्टिवल्स। जो फेस्टिवल्स होते हैं बहुत ही नजदीकी के साथ प्रकृति से, वृक्षों के साथ, जीव जंतुओं के साथ जुड़े होते हैं। जैसे देवासा त्योहार होता है अलीराजपुर में इधर, और भील भिलाला जहां रहते हैं आपके झाबुआ में, धार जिले में, तो 15 से 20 गांव के लोग एक साथ इकट्ठा होंगे और जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहेगा गांव का, वो पूरी ओरिजिन बताएगा प्रकृति की संरचना कैसे हुई, कैसे जंगल बने, कैसे पशु पक्षी बने, कौन कौन हमारे देवता है, कौन कौन वृक्ष हमको क्या क्या देते हैं। दे नरेट फुल स्टोरी थ्रू आउट द नाइट। और कलम का वृक्ष होता है हल्दू, हल्दीनिया स्पीसीज बोलते हैं उसको, एडिना कार्डिफोलिया भी। उसकी एक डाल को, टहनी को लेके आते हैं केवल, और ऐसा काटेंगे कि जमीन पे नहीं गिरे वो, और उसको लाके गांव के बीच में लगाएंगे और रात भर वहां पर पूरा फेस्टिव मूड रहेगा। लोग गाना गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, नृत्य करेंगे। परंतु इसी के बीच में गांव का जो सबसे पुराना व्यक्ति है जानकार, वो पूरी स्टोरी को नरेट करेगा। वो उस स्टोरी में आप सोचिए, वो एक चींटी को भी ग्रेटिट्यूड देता है, वो उसकी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है उस गाने में। आप सोचिए कि चींटी को क्यों ग्रेटिट्यूड देता है। वो इसलिए देता है कि यदि कभी कोई फेमिन हुआ, अकाल पड़ेगा कई वर्षों तक और सीड्स नहीं रहेगा, तो चींटी के बिलों में हम वहां वो स्टोर करके रखती, वो वहां से हम ले आएंगे अनाज को, अन्न को, और फिर से हम क्रॉपिंग करेंगे। तो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, प्रकृति के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति एक कृतज्ञता की भावना जो है, फीलिंग है, ये उनके समाज में है। दैट इज इनबिल्ट थ्रू, यहाँ ट्री भी आ गया हल्दू, यहाँ सभी प्राणी भी आ गए उसके अंदर, पूजा पद्धति भी हो गई, इसको कोई ओवरलुक नहीं करता। उनके समाज की ये व्यवस्था है, ये सतत सदैव बनी रहती है। नेक्स्ट, आप गायन वादन को लिखिए। जितने त्योहार हैं, जो भी गीत संगीत गाते हैं, उसमें बहुत से मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, तो उसमें वृक्षों का नाम आता है, तरह तरह के वृक्षों का नाम आता है। एक वृक्ष होता है काक्लोस्पर्मम रिलीजियोसम, पीला रंग का फ्लावर होता है। यद्यपि हाईली थ्रेटेंड ट्रीज आज हो गया है ये मध्य प्रदेश में, पर मेडिसिनल वैल्यू देखें इसकी, तो इससे अच्छा आज पूरे भारतवर्ष में कोई हाईली मेडिसिनल ट्रीज नहीं है, पर इसको कोई जानता भी नहीं है। काक्लोस्पर्मम रिलीजियोसम, रिलीजियोसम ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था क्योंकि जहां जहां पूजा होती थी वहां जरूर वृक्ष लगे रहते थे। और इसका कोलेस्ट्रॉल में काम है। इसका एंजाइटी, इंसोम्निया में इसके गोंद का बहुत उपयोग है। इसके रुई का जो तकिया बनाते हैं, ऐसा बिलीफ सिस्टम उनके अंदर, यदि उसको आप सर के नीचे रखिए तो आपको बहुत अच्छी स्लीप आएगी। और अभी रिसेंटली इसके ऊपर बहुत रिसर्च पेपर हुआ है, आप नेट पे देखिएगा, ट्रेमेंडस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसके अंदर बताई गई हैं। परंतु सॉन्ग में एक लड़की जो यंग है, वो अपने माँ से बोलती है कि अब गप्ती के वृक्ष में पीले पीले फूल आ गए हैं, कितना सुंदर लग रहा है, अब मुझे लगता है मुझे भी विवाह मेरा करा दो तुम। देखिए, वृक्षों से, वृक्षों की सुंदरता से उसने अपने आप को रिलेट किया है, कितना नेचर से जुड़ा हुआ है। क्या हम ऐसा रिलेट करते हैं आज? क्या नहीं करते हैं हम? परंतु उस वृक्ष का वैल्यू क्या है? उस वृक्ष का मेडिसिनल वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट है, आप नेट पे पढ़िएगा। इसके अंदर गोंद भी इसका बहुत अच्छा होता है, इसका कॉटन जो सिल्क होता है बहुत काम का है, इसका बार्क इज वेरी हाईली यूजफुल। इसी प्रकार से सर, अगर मैं रोको एक बार, येलो सेमल की, पीले सेमल की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, पीला सेमल नहीं,
वो तो सालमेलिया मेलेवेरिका है। दिस इज काक्लोस्पोरम रिलीजियोसम। जी जी अब परंतु ये खत्म क्यों होने लगा? जी ये उनके समाज, मैंने बहुत रिसर्च किया है, पाया कि जहां पर ये पेड़ होता है तो यदि वहां पर लोग महुआ का शराब भी पीते हैं तो उनको नशा नहीं होता। ओहो हो, दहीमन की बात तो नहीं कर रहे? दहीमन नहीं, दहीमन स्कॉडिया मैक्लोडाई। तो कुछ लोगों ने जो नशा करते थे इस वृक्षों को धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। सेकंड रीजन है, जो साइंटिफिक रीजन है, इसका पॉलिनेशन आपका बैट से होता है, चमगादड़ से। और आज चमगादड़ जंगलों में देखने को नहीं मिलते। अभी मैंने लगभग 500-600 बीज इकट्ठे कराए थे सतना और पन्ना से। आपको आश्चर्य होगा, मैंने अपने छत पर 1000 पॉलीथीन में सोइंग किया, केवल एक पौधा तैयार हुआ है, क्योंकि पॉलिनेटर नहीं है। तो प्रकृति में कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर ऑपरेट करती है हमको पता ही नहीं है, और हम क्या क्या चीज को लूज करते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी ये चिंता का विषय है। अब एक पेड़ और होता है गरुआ, गरुआ पिन्नाटा, केकड़ बोलते हैं इसको। मैं केवल एग्जाम्पल इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत रोचक प्रसंग है, कहानी की तरह है चीजें उनके जीवन में। जब किसी लड़के की शादी होती है, इसके छोटे छोटे फल होते हैं लगभग 1 इंच डायमीटर के। उस फल को लड़के के कलाई में धागे से 2 फल को बांध देते हैं, और जब वो शादी के लिए जाता है और जब कन्या को वापस लाता है तो एक फल लड़की के हाथ में बांध दिया जाता है। जब दोनों लौट के आएंगे घर पे, दोनों फलों को कहीं जंगल में या नदी के किनारे बहुत पूजा पाठ करके रखा जाएगा सम्मान के साथ। आप भी देखिए, बताऊंगा मैं स्टोरी को, तो आप सोचेंगे कितना इंपॉर्टेंट ट्री है और ये ट्राइबल विजडम है। उन्होंने इसको बचाने के लिए क्या तरीका खोजा, उन्होंने इसको विवाह के साथ जोड़ दिया, रिचुअल। यदि ये नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन में अच्छी प्रसन्नता, खुशियां नहीं होगी जीवन में शादी के बाद, इसलिए उसको बांध दिया। लौट के आएंगे तो सीड को फेंकना नहीं इधर उधर, उसको कहीं अच्छे जगह पे स्थापित करिए पूजा पाठ करके, जिससे वो जर्मिनेट करे सीड और फिर से नया पौधा बने। पर ऐसा क्यों किया उन्होंने इस ट्री के साथ? इसी को क्यों अपने शादी में उन्होंने उपयोग किया? इसलिए किया, अभी रिसेंट मैंने रिसर्च कराई अरविंदो मेडिकल कॉलेज में इसके ऊपर। कैंसर में जो हमने इन सिल्को डीएनए मेथड से कराया था, 17 पॉइंट स्कोरिंग इसमें आया है, जबकि 15 के ऊपर हो तो बहुत अच्छा मानते। इट इज मोर देन 17% स्कोरिंग। आदिवासियों के जीवन में वो इसको गांठ के रूप में मानते हैं, हमने कैंसर बोल दिया। उन्होंने कहा गांठ में बहुत उपयोगी है इसकी बार्क, पर देखिए तो कैंसर में कितना उपयोगी है वो। जो उपयोगी था, जिसकी बहुत उपयोगिता थी उनके समाज में, उसको उन्होंने बचाने के लिए पूरी व्यवस्था बना दी और उसको उन्होंने संस्कृत में कल्चर से जोड़ दिया। इसलिए कोई आदिवासी गरुआ पिन्नाटा के वृक्ष को कभी नहीं काटता। आप गोड़ में लेंगे, बहुत एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, बहुत समय हमारे ख्याल से आधे घंटे हो गए हैं। एब्रस पिकेटोरियस, आपने घुंची नाम सुना होगा, जिसको सोनार लोग जिससे सोना तौलते हैं। गोड़ों में इसके सीट को कलाई पे बांधते हैं शादी के समय। पर देखिए इसका वैल्यू क्या है, पाइल्स में बहुत उपयोगी है। दिस इज द बेस्ट ड्रग इन द पाइल्स। और भी बहुत इसके उपयोग Which है। is that bead, sir? वो लाल वाला, आधा लाल आधा हाँ हाँ, लाल और काला होता है वो, गुंची। गुंची। जी और अभी जिसकी आप दहीमन की बात कर रहे थे, मैंने कम से कम 25-30 बहुत जानकार जो 70-80 साल के लोग थे, उनसे पूछा कि यदि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम पूछे 10 पेड़ बताओ सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे ऊपर किसको रखना चाहोगे? अधिकांश ने कहा दहीमन, कुछ ने कहा बीजा। ये इतनी इंपॉर्टेंट, बीजा इज सो इंपॉर्टेंट। इसको आदिवासी लोग लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं और छोटा सा लक्ष्मी जी बना करके अपने अनाज के अंदर रखते हैं ये। अब सोचिए बीजा को क्यों हमने लक्ष्मी का स्वरूप दिया। बीजा का पत्ती बंदर खाते हैं, वाइल्ड लाइफ खाता है, बहुत पसंद करता है। इसकी पत्तियों को आप मसल करके अपने चेहरे पर लगाएं, तो जो चेहरे पे झुर्रियां होती खत्म हो जाती हैं। इसका टिम्बर डायबिटीज में उपयोग होता है, सब लोग जानते हैं इसको, बहुत इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है। ये फेबेसी फैमिली का है, तो सॉइल को भी
नाइट्रोजन ऐड करता है, गुड सॉइल बाइंडर है, फॉडर वैल्यू, मेडिसिनल वैल्यू, सॉइल बाइंडर वैल्यू, फास्ट ग्रोइंग है, वाइल्ड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको उनके समाज ने लक्ष्मी का रूप दिया। हमारे लिए तो एक बीजा का पेड़ है, उनके लिए वो लक्ष्मी है। ऐसे ही दहीमन भी है, ऐसे बहुत सी प्रजातियां हैं। दहीमन में एक जो मेरा कि- प्रश्न था सर कि दहीमन में भी कहते हैं कि बहुत हाई हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं और अगर जी। उसकी छाया में बैठ जाएं तो ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो जाता है। अगर इफ यू आर इन स्ट्रेस इट हैज टू, प्रॉक्सिमिटी में रहने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, आप सही कहते हैं। मैंने इसके ऊपर, जब मैं रीवा में चीफ कंजर्वेटर था रिसर्च विंग में, तो हमने रीवा मेडिकल कॉलेज में इसकी जांच कराई थी पूरी। तो जो गुण आपने बताया है सब उसके अंदर है। ब्लड प्रेशर का भी है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे बहुत काम करता है। इसकी छड़ी पास में होती है तो कभी सांप नहीं आते। मैंने खुद देखा है नागपंचमी में, चूंकि सपेरा लोग घर घर आते हैं, तो मेरे ही घर पर आया था रीवा में, तो मेरे पास दहीमन की लकड़ी थी, क्योंकि अमरकंटक के एक संत ने मुझको बताया। तो वो अदरवाइज तो ऐसे पूरा ऐसे फन काढ़े रहता था, जैसे ही दहीमन की छड़ी लाते थे एकदम टिल डाउन। अब कई बार मैंने रिपीट किया इस प्रोसेस को, तो सपेरा भी बोला ये कौन सी लकड़ी, मुझको आप दे दीजिए इसको, इतना अच्छा तो मेरे पास भी नहीं है। ये सब, ये इनके समाज का अध्ययन आज का नहीं है, बहुत पीढ़ियों दर पीढ़ियों उन्होंने इसको इवॉल्व किया है। और चरक ऋषि ने भी बोला है कि बहुत सी ऐसी औषधियों का ज्ञान आदिवासी परंपराओं में है और उनसे हमको खोजना चाहिए। आज जो हमारा वानिकी प्रबंधन की दिशा है, जो हमारा वर्किंग प्लान बनता है, उसमें कभी ये सब चीजें प्रिस्क्रिप्शंस के रूप में नहीं आती कि आप यदि प्लांटेशन करें तो ये प्रजातियों को आप प्राथमिकता दें, इस प्रोपोर्शन में इन प्रजातियों को लगाएं आप, जो प्रोपोर्शन में जंगल में होती है। आज वन विभाग प्लांटेशन करता है तो 2x3, 4x4, 2x2 लगा दिया। और आप प्रोपोर्शनेट देखें, आउट ऑफ 216 ट्री स्पीसीज है मध्य प्रदेश में जो वाइल्ड है, आप पाएंगे देयर आर 5 स्पीसीज which contribute 95% in plantation activity in the entire मध्य प्रदेश। और हम बोलते रहते हैं वन विभाग में भी रह करके बायोडायवर्सिटी वर्कशॉप करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं बायोडायवर्सिटी पर, परंतु हमारे प्रैक्टिस में है क्या बायोडायवर्सिटी? इट इज नॉट इन अवर प्रैक्टिस। मोनोकल्चर इट की इज ओर नॉट, जा रहे हैं। बिल्कुल। और क्यों क्यों क्योंकि हमारा वर्किंग प्लान का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है ये, और हम नेचर से वैसे नहीं जुड़े हुए हैं। परंतु एक समाज नेचर से जुड़ा हुआ है, उनके जीवन में ऐसा जुड़ा हुआ है कि उनका वो किनशिप है, उनका एक रिश्तेदार है, वो रिलेशन है। जैसे रोहिणा को बोलते हैं मामा है, ये किसी को मौसी बोलते हैं, ये आप सोचिए एक रिलेशन है। तो जब आपका प्रकृति के साथ तरह तरह से रिलेशन हो जाएगा, पूजा के रूप में, सॉन्ग के रूप में, चित्र के रूप में, मेडिसिन के रूप में, और बहुत से त्योहार जब होते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पोला में 3-4 औषधियां जो हर्ब श्रब्स हैं, उनको लेकर के वो आते हैं और खेतों के बीच में गाड़ देते हैं। तो बेसिकली इट इज अ पेस्टिसाइड है, वो जो पेस्ट को कंट्रोल करता है वो। परंतु इसके ऊपर चूंकि रिसर्च नहीं हुई तो उसको हम ऐसे बोलेंगे कि ये कोई मतलब नहीं है। तो एग्रीकल्चर से भी जुड़ा हुआ है हमारा, वेटनरी सर्विसेज से भी। जो एरिथ्रेना है आपका स्पीसीज, किसान कभी इसको कभी नहीं काटता, इसको बोलता है वेटनरी डॉक्टर है, गांव का डॉक्टर है ये। वेटनरी से जुड़ गया, आपका फूड वैल्यू से, मेडिसिनल वैल्यू से आपके जुड़ गया, डेटीज से जुड़ गया, पूजा पाठ संस्कृत से जुड़ गया, मैरिज से जुड़ गया, कितने प्रकार से ये जुड़ा हुआ है आप विश्वास भी नहीं करेंगे। शायद हम बताने लगे तो घंटों लग जाएंगे। बस हम यही बोलना चाहेंगे कि एक वनवासियों के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक इम्पोज प्रैक्टिस नहीं है, कोई रेगुलेटरी मेजर्स नहीं है। इट इज द किनशिप रिलेशन, इट इज द बिलोंगिंगनेस विद द नेचर। कोई आपका रिलेशन हो, आपका ब्रदर हो, फादर हो, मदर हो, रिलेटिव्स हो, पड़ोसी हो, क्या आप उसको हार्म करेंगे कि उसके साथ सहजीवन के रूप में आप जीवन को जिएंगे? इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। आदिवासियों जंगल में कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू, इज ए किनशिप वैल्यू, इट इज a belongingness, it's an affection in which they live in. परंतु with years together from the British time,
जब से धीरे धीरे ये वन प्रबंधन शासकीय व्यवस्थाओं में गया, और जो इस व्यवस्था में व्यवस्थापक है उनको इस वैल्यूज के ऊपर समझ नहीं है, कभी उनको समझा नहीं। और मैं भी फॉरेस्ट ऑफिसर रहा, मुझे भी कभी नहीं पढ़ाया गया एकेडमी देहरादून में, या कभी ट्रेनिंग में नहीं बताया गया क्या इसकी वैल्यूज है। तो हम भी जब वर्किंग प्लान बनाते हैं तो ये जो कल्चरल वैल्यूज हैं ये हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मैनेजमेंट नहीं होता। इसलिए आज हम जनजाति समुदाय भी आज जंगलों से बहुत दूर हो गया, वो भी तरह तरह के राइट्स के रूप में जंगल को मांग करने लगा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसको हमको सेमेंट करने की जरूरत है, तभी शायद हम फॉरेस्ट को बचा पाएंगे, नेचर को। और इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने 2007 में 46 पॉइंट दिए कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द इंडिजिनस पीपल, ट्राइब्स एंड द पीपल लिविंग अराउंड देम। और जो कुमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क बना है 2022 का अंडर द सीबीडी कन्वेंशन, बहुत डिटेल प्रिस्क्रिप्शंस हैं उसमें। सेक्शन आर्टिकल 8J है जो केवल पारंपरिक ज्ञान के ऊपर उन्होंने बोला है, और बड़े डिटेल प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। परंतु जिन्होंने बनाया, मैंने चूंकि DSC कर रहा हूं उस पर, मैंने देखा है देयर सो मेनी थिंग्स आर मिसिंग इन दैट, क्योंकि उन्होंने भी उस जीवन को नहीं देखा है। तो जिसने इस जीवन को देखा है उनके साथ काम किया है, जो स्टूडेंट्स इस परिदृश्य से, ऐसे एनवायरनमेंट से, बैकग्राउंड से आए होंगे, जनजातीय समुदाय से, जंगलों से, उनकी समझ होगी। इसलिए मेरा तो आप सबसे ही है कि इस विषय के ऊपर आप शोध करिए, इस विषय को पढ़िए। आज इंटरनेट का समय है, इतनी इंफॉर्मेशंस है जो कि हम लोग को नहीं मिलती थी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने शहरों में टैटू खूब देखे होंगे, सभी लोग टैटू कराते हैं। अभी एक फिल्म भी आई थी, सबने देखी होगी शायद, वो फिल्म टैटू के ऊपर ही था। आप बैगा समाज में जाइए कभी, मंडला डिंडोरी में या गोंड में, जितने ट्राइब्स हैं सबके टैटू के, गोदना जिसको बोलते हैं हिंदी में, सबके पैटर्न्स अलग अलग हैं। यदि आप 10 ट्राइब को खड़ा करिए, मैं बता दूंगा ये बैगा है या गोंड है कि कोल है कि कोरकू है कि सहरिया है। सो डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स इन देयर टैटू सिस्टम। सेकेंड पार्ट, जो बैगास होते हैं पूरे बॉडी में टैटूज बनाते हैं, पीठ पर भी बनाते हैं। और जानते हैं, किसी बैगा महिला से भी बात करने का मौसर मिले, आप जबलपुर में है, कभी स्कूल का ट्रिप बने तो आप जाइएगा थोड़ा चाणा एरिया में, और एक वहां कमलाबाई करके हैं जो कि बैगा ही है, और आज पूरे विश्व में लोग उनको बुलाते हैं कि आप बैगा, आप आइए टैटू करने हमारा। मैंने उनसे बहुत बातचीत की। एक बैगा महिला बोलती है कि जो हमारा जंगल है हमारे घर के आसपास, हम इसको अपने बॉडी के ऊपर लाते हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स आवर फॉरेस्ट, आवर कल्चर, आवर नेचर। मेरे साथ मरने के बाद कुछ नहीं जाएगा, परंतु ये टैटू, ये गोदना मेरे साथ जाएगा, और यहाँ का जंगल मुझको रिमेम्बर करेगा थ्रू दिस गोदना, थ्रू दिस टैटू। सच अ इमोशनल बॉन्डिंग ऑफ फॉरेस्ट थ्रू अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ओवर द बॉडी, कि ये जंगल मुझे याद करेगा। सोचिए जरा, ये जंगल मुझे, आज हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, कहते याद के लिए दे रहा हूं, परंतु वो बैगा महिला अपने जंगल के नदी नालों सबको अपने बॉडी के ऊपर बनाती है और कहती है जंगल मुझे मरने के बाद मेरे साथ जाएगा, ये मुझको भी याद करेगा कि मैं इसके साथ गई हूं, मैं इसके जीवन में थी। ये एक संस्कृति है जंगल के प्रबंधन का, जंगल को बचाने का और जंगल में रहने का। हम अपनी बात को यहीं पर बताएंगे, समाप्त करते हैं। परंतु जो टैटू ये गोदना है, एक्चुअल होता है ना, इसके पीछे बहुत से मेडिसिन प्लांट्स हैं, इंक्लूडिंग द बीजा का भी जो में रस निकलता है ना, ऐसे करीब 25 हर्ब, श्रब और क्लाइंबर्स हैं जिनके लैटेक्स का उपयोग करके पूरे केमिकल प्रिपरेशन करते हैं। ये मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं उनकी, एंटी इंफ्लेमेटरी वैल्यूज भी हैं। और आपको बता दूं,
एज के साथ गोदना अलग अलग प्रकार का होता है। अर्ली एज में सबसे पहले जब 7th 8th ईयर के कोई होता है तो उसके माथे पे सबसे पहले बनाते हैं, और जैसे जैसे वो 12 साल 14 साल की होगी उसके अलग बॉडी पार्ट में, जब शादी हो जाएगी तो उसके पीठ पर बनाएंगे, बच्चे हो जाएंगे तो उसके पैर पे बनाएंगे। ऐसा आप जान सकते हो कि ये महिला है तो किस स्टेज में है ये। सच ए ब्यूटीफुल कल्चर, जिस गोदना को हम समझ नहीं सकते, स्टोरीज हैं उसके पीछे पीछे। अब आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर इंटरैक्ट करिए, अंत कहने के लिए तो अंतहीन बातें हैं। अंशुमान जी। बिल्कुल है सर। तो सुनते रहना है। मुझे एक डॉक्टर साहब थे, सर्जन थे, कभी डिंडोरी में पोस्टेड थे, तो एक बैगा कहीं बजाक के आसपास से जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं पहुंची, वो इलाज कराने आया था। वो दूसरे दिन उसने बोला मैं वापस जा रहा हूँ, चाहे मैं मर जाऊँ मैं इलाज नहीं कराऊंगा। बोले मैं सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ रात ही नहीं होती। तो जो रात में बल्ब जलता था उससे वो परेशान था कि वो यहाँ हमारे यहाँ तो रात होती है, यहाँ तो रात ही नहीं होती कभी। तो वो नेचर से इतना उसकी बॉडी क्लॉक जुड़ी हुई है कि वो एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब उसको पोल्यूशन लग रहा है, उससे परेशान हो जा रहा है वो बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। So they are so close to nature and we are so far away, unfortunately. बस आज प्रश्न यही है कि यदि हमको जंगल को बचाना है जी तो इनको हमें एसोसिएट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, फिर से उनके अधिकारों को अधिकार संपन्न बनाना पड़ेगा। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में सेक्शन 3(1)(j) करके है, उसमें प्रोविजन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कस्टमरी रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल एंड कस्टमरी राइट्स। उसके ऊपर काम बहुत जरूरी होना। बल्कि फॉरेस्ट राइट एक्ट सर, मेरा तो विरोध रहा है उससे, क्योंकि इसलिए कि एक कभी भी टाइटल नहीं देता था, कभी टाइटल मांगा किसी ने जंगल में, पर इस फॉरेस्ट राइट एक्ट ने टाइटल देना शुरू कर दिया कि ये जमीन तुम्हारी है, तुम रख लो, जैसे चाहे वो इस्तेमाल करो। तो जो कस्टमरी जो कनेक्शन था बिटवीन द ट्राइबल एंड द फॉरेस्ट वाज टू टेक एंड टू गो बैक, नॉट टू क्लेम ओनरशिप ओवर एनीथिंग। That was a change by the Forest Rights Act to claim ownership over the land. उसमें जो सेक्शन 3 है उसमें 13 राइट्स दिए गए हैं। जी जी जो इंडिविजुअल राइट्स है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन है, जी। परंतु राइट्स थ्रू द ओवर द एमएफपी, राइट ऑफ ग्रेजिंग एंड वन इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड मैनेज फॉरेस्ट। उसको ग्राम सभा को ही कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए सौंपा जाए, ये पार्ट है। एक्चुअली इसकी फिलॉसफी को समझ नहीं पाते, गांव के लोग भी सोचते हैं कोई उनको मिल गया सब कुछ, वो मिलना सोचते हैं, एक पॉलिटिकल गेन समझते हैं, और डिपार्टमेंट सोचता है कि मेरा राइट जा रहा है। दिस इज द टसल। यदि उसकी फिलॉसफी पे जाएं आप तो यू विल रिलीज द कंसेप्ट। Right. Children, if you have any questions, please ask. आप प्रश्न करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा अपने बोलने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न तो खड़ा हुआ जिसका उत्तर मैं ना दे सकूं। जरूर पूछिए, कोई नेगेटिव प्रश्न भी कह सकते हैं कि आप जितनी बातें बोल रहे हैं ये तो साइंटिफिक लाइन पे नहीं है, तो मैं उसका साइंस बताऊंगा आपको। और यदि प्रश्न नहीं आता है तो भी मैं आपको बोलूंगा, जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क है 2022 का, इंटरनेट पे जरूर पढ़िए। और जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन हुआ इंडिजिनस ट्राइब पर 2007 में, उसको जरूर पढ़िए, उसकी फिलॉसफी को। तो जो कुछ मैं कह रहा हूं आपको दिखेगा उसमें। अच्छा, एक बात बताइए अंशुमान जी, यदि पूरा फॉरेस्ट मैनेजमेंट हम कहते हैं साइंटिफिक लाइन पर है, जो फॉरेस्ट के बहुत सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, मैंने ही बनाया था शिवनी जिले का प्लान, और इट टेक्स 2 to 3 years, पूरे जिले का सर्वे करना पड़ता है, सब डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, फिर हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट का 10 years का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि आप यहाँ पर ये काम करिए। यदि सब कुछ इतना अच्छा साइंटिफिक लाइन पे स्टडी होके मैनेजमेंट हो रहा है,
तो आफ्टर एवरी डिकेड्स फॉरेस्ट की डेंसिटी, फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट का ग्रेजिंग लैंड ये डिटोरिएट क्यों हो रहा है? फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, roughly 35 species of tree species are under threat, under serious threat. If our managements are so scientific, so regulatory, why we are not able to achieve this? Things are getting wrong. It means the way is with the tribals believe with their system, और यदि उनके बिलीफ सिस्टम को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, हम उनको सम्मानित करेंगे, आज वो भी अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के उनको शर्मिंदगी महसूस करती. जो बच्चे ट्राइबल एरिया से शहर में आते हैं उनका सब कुछ बदल जाता है, वो अपनी बातों को याद भी नहीं करना चाहते, क्योंकि सिस्टमेटिकली समाज ने भी कहा नहीं नहीं तुम्हारा ज्ञान कुछ नहीं, साइंस तो ये बोलती है. एक मखना डामोर का 85 ईयर्स का झाबुआ का है, बड़वा है, बहुत जानकार व्यक्ति है. तो अभी अरविंदो मेडिकल कॉलेज हमने प्रदेश से करीब 25-30 ट्राइबल्स को बुलाया था जो बहुत जानकार थे. मखना डामोर ने डॉक्टर विनोद भंडारी जो ओनर हैं उनको बोला आप कुछ नहीं जानते हो, आप बीमारी बताइए मैं दवा बताऊंगा. डॉक्टर साहब आज भी याद करते हैं. ऐसा तो आज कोई बड़ा अच्छा डॉक्टर भी नहीं बोल सकता है कि मैं ठीक कर दूंगा. जो कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, ठीक कर पाए ना कर पाए, कॉन्फिडेंस वैल्यू, ये कॉन्फिडेंस उन समाज में भी कम हो गया है. इसलिए उन्होंने भी अपनी पद्धतियों, परंपराओं, कल्चर्स को छोड़ना शुरू किया. हमको उस कॉन्फिडेंस को वापस इंस्टिल करना पड़ेगा बाय recognizing and glorifying those rights. This is why this committee was formed actually, to हमको उनको नेटिव वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है और उनको कैटलॉग करना है. एक्चुअली इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत पुअर है ट्राइबल नॉलेज का, और ये सबसे बड़ा कारण है कि उसमें कोई सेंस ऑफ प्राइड नहीं है उन लोगों में, कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है. उनके जो जड़ी बूटियों का ज्ञान है वो भी डॉक्यूमेंटेड बहुत पुअरली, ओरल ही है जो कुछ है, बाकी तो. अंशुमन जी आपको बताऊं, जी, हम लोग बहुत से लोग ट्राइबल्स को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि वो उनका ज्ञान उनके साथ चला जाता है, बताते नहीं वो, ये क्रिटिसाइज. आप बताइए, इंडिया ने राफेल लिया फ्रांस से, और फ्रांस ने पासवर्ड नहीं दिया, इसलिए इंडिया इनकैपेबल रहा बहुत सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने में. एक ट्राइब अपनी जानकारी को किसको देगा? जो उसका सदुपयोग करेगा. यही हमारी वैदिक परंपरा थी, जो सदुपयोग करे उसको ज्ञान दो. स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने देखा है, पीएचडी करते हैं, उससे पूछ लिया बैठे क्या करते हो, ये ऐसे नोट कर लिया, एक थीसिस बना दी. वो इसका 1% केवल पार्ट पाते हैं. मैंने एक ट्री के ऊपर 40 इयर्स रिसर्च किया था, एडिना कार्डिफोलिया कलम, और मुझे करीब 60 साल के बाद उस व्यक्ति ने बताया इसका रियल वैल्यू क्या है. और उसने मुझे कसम दिलाया आप किसी को मत बताइएगा, नहीं तो लोग दुरुपयोग करेंगे. और उस पेड़ का उपयोग होता है इंसोम्निया में, जो आजकल समाज में सब जगह फैला हुआ है शहरों में. परंतु उसने उस पार्ट को कहा आप इसको एक थोड़ा सा खा लीजिए और नींद नहीं आए तो आप बताइए. परंतु आज यदि ये ज्ञान को हम दे दें तो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अगेंस्ट में होगा. पारंपरिक ज्ञान को लेके आपने मेडिसिन बना लिया, आप करोड़ों रुपए कमा लिए, और उस ट्राइब को क्या गया? आप जितने रिसर्च पेपर देखेंगे ट्राइब का, किसी में ट्राइब का नाम भी नहीं आया. इस ट्राइब ने नरेट किया. फर्स्ट रिसर्च पेपर मैंने भी ट्राइब किया, हमने ऑथरशिप दिया मखना डामोर को, आपके TFRI से रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी. वो ट्राइब को उसमें मैंने दिया, उसको जाकर के ये तुम्हारा नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है. यू आर सो हैप्पी कि साहब आपको मैं बहुत कुछ बताऊंगा उस समय के साथ. ऐसे जब रिश्ते बनते हैं ना तब आदमी बताता है, नहीं तो क्यों बताए. हमको इज्जत देनी पड़ेगी उनको. हम उनको जो लोअर लिविंग बीइंग्स मानते हैं वो एटीट्यूड हमको तोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा. शायद हमसे ज्यादा इवॉल्व निकले अगर हम कंपैरिजन में बैठेंगे तो. निश्चित यही हमारी गुरु ज्ञान परंपरा थी. विद्यालय में बच्चे पढ़ते थे, शिक्षक को सम्मान देते थे, शिक्षक खूब मेहनत करके आगे पढ़ाता था. आज ये रिश्ते उतने अच्छे नहीं रह गए हैं. तो देखिए क्लास में बच्चे नहीं आते, मैं तो देखता हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी में बच्चे नहीं है, पता नहीं कमी कहाँ पर है. गॉड नो. चेतना हैज रेज्ड द हैंड. चेतना, यू हैव टू. जी जी.
Good afternoon, sir. जी नमस्कार। Sir, this question may not be of a lot of relevance, but when you were talking, this just came into my mind. You spoke about Dahiman, Bija, and Gonchi and all of its benefits. But then I don't quite understand why is it that even after knowing all of this, we still fail to conserve nature and still fail to treat it properly. नहीं, आपका क्वेश्चन इज वेरी वैलिड and now the departments has changed their strategy. Now they are telling at least 15% of these species should be planted compulsorily, and the department has started raising in their own nursery now. Okay. There is a change now. There is a change after much damage. I was told कि दहीमन के 150 पेड़ मिले हैं मध्य प्रदेश भर में टोटल। पर आपको Okay, भी sir. बताऊं, जब मैं खुद एडिशनल पीसीसी ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री मुख्यालय भोपाल में था, जी तो पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 5 करोड़ पौधे हर साल बनते हैं और हमने 50 लाख दहीमन के तैयार कराए थे। आप आदमी सोच ले तो सब कुछ कर सकता है। हो सकता है। हमको जरूरत नहीं कोई पॉलिटिशियन मुझको बोले, हम जहां पर बैठे हैं व्हाट वी कैन डू वी मस्ट डू। जैसे आपने Yes, sir. दहीमन कहा, आप ये क्वेश्चन ये कहिए कि सर ये दहीमन का प्लांट कहाँ मिलेगा, मैं अपने सोसाइटी कॉलोनी में इसको लाके लगाऊंगी। दिस इज द पॉजिटिव क्वेश्चन एंड दिस इज द नेगेटिव। डोंट sir. फील इट अदरवाइज। हमको ऐसा सोचना है हम क्या कर सकते हैं, वेयर वी आर। आप मेरे कभी कोई घर पे आए, देखिए मेरे छत पर 1000 पौधे लगे हैं जिसमें सब 150 स्पीसीज लगी है मेरे छत पर, और हर साल में 2 से 3000 पौधे यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट सबको देता हूँ, फ्री देता हूँ। मैं क्यों वेट करूं, फ्री को पौधा विभाग को देना चाहिए, सरकार को नीति बनानी चाहिए। व्हाई यू शुड Yes, वेट, sir. डू इट व्हाट यू कैन। Thank you so much for your answer, sir. थैंक यू। Any other student has any question? Sir, I have a question. So as Anshuman sir said कि documentation नहीं है, मतलब हम इतनी सारी चीजें हम जानते हैं पर किसी चीज की documentation नहीं है, हमें पता भी नहीं कि वो, मतलब आजकल लोग चाहते हैं ऐसे ही है कि आप दे देंगे, खाओ कहाँ लिखा है, आप दिखाओ कहाँ लिखा है, हवाबाजी में आते हैं, लोगों को लगता है क्या मतलब है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि what could we do to document this and हम उसको और अच्छे से preserve कर सकते हैं, मतलब मेरा ऐसा एक question है। देखिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने अभी आपको बताया, द स्टूडेंट शुड हैव पेशेंस। यदि पेशेंस रही है तो सामने वाला आदमी आपको जितना दिखता है आप जल्दी में उतने ही आपको बता देता है, वो आधा अधूरा सा। जो भी स्टूडेंट्स है, यदि वो एक्सकर्शन पे जाए स्कूल से कभी किसी गांव में, तो गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, वैद्य लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनसे थोड़ा सा, आपने नाम उपनिषद तो नाम सुना होगा, उपनिषद 18 उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के चरण में बैठ करके विनम्रता से उनसे पूछो। भगवत गीता में भी बोला है, जानकार व्यक्ति के पास जाओ और पूरी जानकार के पास जाना और बड़ी विनम्रता के साथ उनसे पूछो, वो व्यक्ति अपने आप सब कुछ उड़े देगा आपको। और हम तो ऐसे जाते हैं, हम तो रिसर्च स्कॉलर हैं, हाँ अच्छा ये नोट किया, आई एम द इंटेलिजेंट वन, और एक रिसर्च पेपर छाप दिया। विनम्र होइए, उसके पास जाइए, कई बार जाइए, उससे थोड़ा रिश्ता डेवलप करिए। यू विल गेट लॉट मेनी थिंग, देन यू विल कंट्रीब्यूट टू द नेशन, टू द सोसाइटी। चुनौती यही है कि वो एक्सक्लूडेड महसूस करते हैं अपने आप को, तो दे डोंट शेयर देयर नॉलेज, सो यू कांट डॉक्यूमेंट टिल दे शेयर देयर नॉलेज। यू हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट, देन दे विल लेट इट आउट, देन यू कैन डॉक्यूमेंट इट। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने भी तो अंशुमान जी मुझसे रिक्वेस्ट किया, सम्मान के साथ बुलाया, इसलिए मेरी इच्छा हुई कि मैं कितना बता दूं आपको। और यदि कोई गवर्नमेंट का कार्यक्रम आता, मुझको ऑनरेरियम देते, तो ही मैं कहता मुझे कोई मतलब नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, बहुत से लोग जुड़ गए, क्योंकि स्टूडेंट्स आए थे, आपने मुझको बोला, त्रिपाठी जी ने बोला, आई केम ओवर हियर। Now we are so highly thankful to you. Thank you. For coming. Janvi, you can seek permission and close the session. Yes, sir. Sir, thank you so much for this insightful and very enlightened session. I don't think so anyone could have done this better, sir. So I think this is one of the most favorite sessions of mine. Thank you so much. With that, with your permission, I would like to close the session. Okay, my thanks to Anshuman ji, Dr. Tripathi ji, and for all the students who have bear with me. With a little of my knowledge, I try to share with you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir.